Hello everyone, welcome to you all on the Gate Study 5 Plus. Here we will discuss the signal sense system challenge 1. The question is saying that the Fourier transform of the signal ft is given to us. This is the f omega which is given to us and we have to find out these values. I think some student already replied in the comment section. So now student we will try to solve this. So f omega value I am just writing on the next slide. Whatever f omega is given to us, it is nothing but 1 minus cos square omega, and by using the simple trigonometry I can write as a this 1 minus cos square omega, I can write sin square omega. So I am just writing here sin square omega upon omega square and dot cos of omega. Okay, so now tell me guys, we know this fact is a triangular signal Fourier transform is what? If I talk about the triangular signal, and if we make a triangular signal here, so student, the standard triangular signal is here. This is the standard triangular signal. Okay, where you have this is signal. Suppose that this is f of t, or let me take this is x of t. So suppose that अगर ये x of t है, which is the time duration is from minus tau to plus tau, and the amplitude is capital A, then its Fourier transform must be a tau sampling square omega tau by 2. This is the Fourier transform of this. Yes, sir. Now, student, here we are having this term sin square upon omega square. So, can I write this as a sampling square omega? Yes, sir, we can write. And this cos omega, I am writing this e to the power plus j omega plus e to the power minus j omega, and divide by 2 I am writing here half. I am just took outside. Now student, I just want to let this term को हमने assume कर लिया कि suppose करते हैं ये term h ओमेगा है, suppose कर लेते हैं ये term h ओमेगा है, तो इसके corresponding हमको h of t मिलेगा. yes sir. तो अगर ये h ओमेगा है, मैं इसको यहाँ लिखता हूँ h ओमेगा को, suppose that this is h of ओमेगा, या फिर इसको आप x ओमेगा लिखा हो यहाँ पे, तो x ही मान लेते हैं, कंपेयर करने के लिए आसान रहेगा. अगर ये xt है तो ये x ओमेगा है, और अगर आप इसको x of t मान रहे हो, इसको आप पूरे को x of ओमेगा मान रहे हो, तो यहाँ पे आप लिख रहे हो half of sampling square omega, half of sampling square omega. Yes. So now when you will convert into the time domain, आपको इसका x of t चाहिए, तो आपको a और tau का वैल्यू निकालना होगा. Now can we compare sir, inside the bracket अगर आप बात करोगे तो सर ये ओमेगा का कंपैरिजन tau by 2 से है, tau by 2 यहाँ 1 है, तो shall we write after comparison tau by 2 equal to 1, and as far as amplitude is concerned a tau का वैल्यू half है, तो यहाँ से आप लिख सकते हो a tau value is half only. Now can you please tell me guys, from here what is tau value? So tau value is nothing but 2 sir, and a value is nothing but what? And a value is nothing but 1 by 4. Yes or no? A value is tau value 1 by 4 आ जाएगा. तो अगर यहाँ से a भी पता है और tau भी पता है, then can we design x of t? Yes. Tau should be minus 2, so signal should be minus 2 to plus 2. And यहाँ पे जो magnitude है a वो आ चुका है finally 1 by 4, so we should write 1 by 4. इसका मतलब सर ये कि हमको x ओमेगा का इनवर्स x ऑफ t मिल चुका है. ओके सर. नाउ स्टूडेंट यहाँ थोड़ा सा ओपन द ब्रैकेट करिए, जस्ट ओपन द ब्रैकेट हियर. तो यू कैन बी राइट दिस एज ए x ओमेगा डॉट e टू द पावर प्लस j ओमेगा एंड प्लस x ऑफ ओमेगा डॉट e टू द पावर माइनस j ओमेगा. यस सर, वी कैन राइट. And this is equivalent to what? This is equivalent to f of omega only. Yes, this is also capital X omega. Now can you please tell me, if I will take inverse Fourier transform both sides IFT, then what should I write? Can I write ft is equal to, sir, this, it is a time shifting sir. If xt Fourier transform is x omega, then xt plus 1 Fourier transform is xt x omega e की power j omega. Similarly here we should write x of t minus 1. So this is nothing but your f of t. This is nothing but your f of t. अगर हमारे पास x of t है तो ft ड्रॉ कर सकते हैं क्या? यस सर. सो एक बार मैं यहाँ पे फटाफट से ft plus 1, ft बनाने के लिए you have to draw xt plus 1 first. Okay, if I will draw xt plus 1 here, how I will draw sir? xt plus 1 means we have to shift this signal in the left hand side by 1 distance. तो मेरा जो xt का सिग्नल है that is having the duration from -2 to +2, अगर इस सिग्नल को मैं शिफ्ट करता हूं तो क्या मेरे को न्यू सिग्नल जो मिलेगा that will be from -1 to, that will be from -3 to +1, and the signal is going to be like this. So signal is shifted and now the center point is shifted to -1 and still the height is 1 by 4.
स्टिल द एम्पलीट्यूड इज 1/4, -2 से +2 पे था पहले, अब ये सिग्नल शिफ्ट हो गया क्योंकि हमने xt+1 परफॉर्म किया। एंड इफ यू विश टू परफॉर्म, जस्ट इसी के बिलो करते हैं, इफ यू विश टू परफॉर्म xt-1, ओके, अगर आपको इस बार xt-1 परफॉर्म करना है तो क्या ये सिग्नल पहले -2 से लेके +2 पे था, लास्ट स्लाइड देखो, अब ये -1 से लेके +3 हो जाएगा। यस सर, तो -1 अगर यहाँ है और +3 कहीं यहाँ है, यहाँ कहीं +1 है, तो ये सिग्नल कुछ ऐसा बनेगा, कुछ ऐसा कर ऐसा। नाउ टेल मी गाइस, इज इट 1/4 हियर? यस सर, 1/4। एंड हियर आल्सो t, यस हियर आल्सो t, हियर आल्सो t। नाउ स्टूडेंट, हमको एक्सो, वी आर लुकिंग फॉर ft एक्चुअली, अगर ft निकालने के लिए क्या इन दोनों को ऐड कर देंगे। सो इफ यू वांट टू ऐड दीज टू सिग्नल, द फाइनल सिग्नल आई विल ड्रॉ हियर द एडिशन ऑफ xt+1 and xt-1. If I will add here, then tell me from -3 to -1 what will happen? Sir, from -3 to -1, the signal, this nature of signal will come as it is. This signal nature will come as it is. Yes or no? Yes sir. Now student, tell me what is happening exactly from -1 to +1. So -1 से +1 पे हमारे पास एक रैंप सिग्नल है जिसका स्लोप डिक्रीजिंग है, और स्लोप का वैल्यू क्या है? डिफरेंस इन y अपॉन डिफरेंस इन x। डिफरेंस इन y 1/4 है और डिफरेंस इन x आपका जो है 2 है। तो आप लिखोगे स्लोप जो आएगा डिफरेंस इन y 1/4 अपॉन -1 टू +1 का डिफरेंस कितना आ गया? 2। ये इसका स्लोप है 1/8। तो ये स्लोप क्योंकि डिक्रीजिंग है तो नेगेटिव इसका स्लोप है। और डोंट यू थिंक कि सर यहाँ पे भी वही लाइन का स्लोप सेम है 1/4 अपॉन 2, बट ये स्लोप पॉजिटिव है और ये स्लोप नेगेटिव है। एंड व्हेन यू विल ऐड दीज टू सिग्नल्स ना, तो पॉजिटिव स्लोप नेगेटिव स्लोप को कैंसिल करेगा, तो यू विल गेट ए कांस्टेंट लाइन ओनली, यू विल गेट ए कांस्टेंट लाइन ओनली टिल +1। यहाँ पे आपका मैग्नीट्यूड एज इट इज रहेगा 1/4 पे, जहां पे लास्ट मैग्नीट्यूड रीच किया था। एंड आफ्टर दैट एज सून एज 1 विल कम, 1 2 3 सेम नेचर रहेगा सर, तो 1 2 3 सेम नेचर रहा, मतलब ये। तो इसका मतलब सर ये कि दिस इज योर f ऑफ t। यस सर, इसका मतलब एग्जामिनर ने जो आपको ये f ऑफ ओमेगा दिया था, नाउ आपने उसका इनवर्स लाप्लास, इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म निकाल लिया है, व्हिच इज नथिंग बट ft। अब बताइए एग्जामिनर क्या पूछ रहा था? तो आप लोगों को सर एग्जामिनर ने पहला क्वेश्चन ये पूछा था कि फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल -∞ टू ∞ f ओमेगा d ओमेगा। अब बताइए क्या हम इसको फ्रीक्वेंसी डोमेन, फ्रीक्वेंसी अंडर और एरिया अंडर फ्रीक्वेंसी डोमेन प्रॉपर्टी से शैल बी राइट 2 पाई f0। तो हमारे पास ft तो ऑलरेडी है, हमको उसमें केवल f0 को नोटिस करना है। f0 का वैल्यू कितना होगा सर? 1/4 है, मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 2 पाई इंटू f0, f0 इज 1/4। सो डोंट यू थिंक इट इज π/2 ओनली? यस सर, तो π/2 हमारा आंसर आ गया, π/2 हमारा आंसर आ गया। सिमिलरली स्टूडेंट, सेकंड क्वेश्चन में एग्जामिनर बोल रहा है फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल -∞ से लेके ∞ ft dt। डोंट यू थिंक सर इसका मतलब हमको इस सिग्नल ft का एरिया निकालना है, और ये सिग्नल तो इवन सिग्नल है, तो एरिया निकालना आसान होगा, केवल 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। एंड वी विल फोकस ओनली ऑन द आरएचएस पार्ट। अगर आप आरएचएस पार्ट पे फोकस करोगे और अगर एरिया को रिप्रेजेंट करोगे, तो ये एक एरिया है, दिस इज द फर्स्ट नेचर ऑफ एरिया रेक्टेंगल। और सेकंड नेचर ऑफ एरिया क्या है? सेकंड नेचर ऑफ एरिया क्या हम बोल सकते हैं कि सर ये सेकंड नेचर ऑफ एरिया हमारा एक ट्रायंगुलर पल्स आ रहा है, तो बताओ हमको एरिया निकालना है, तो ट्वाइस इंटू क्या करें सर? आप ट्वाइस इंटू सबसे पहले रेक्टेंगुलर पल्स है तो विड्थ इंटू हाइट होता है, विड्थ कितना है इसका 1 है सर, और हाइट कितना है 1/4 है। ये तो हो गया फर्स्ट सिग्नल का एरिया, ये पर्पल वाले का। अब ब्लू वाला एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ इंटू विड्थ इंटू हाइट। विड्थ इसका कितना है 1 से लेके 3 का डिस्टेंस 2, मतलब 2 हो गया, और हाइट इसका 1/4 है। और इसको 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि इस इधर वाला सिग्नल का भी एरिया वही होगा, क्योंकि ये सिग्नल इवन है। तो बताइए 10 सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, तो डोंट यू थिंक 2 2 कैंसिल हो गया सर, बाहर 2 रखा है और यहाँ इनसाइड द ब्रैकेट 1/4 प्लस, और ये 1/4 आया। और डोंट यू थिंक कि सर 2 इंटू 1/4 प्लस 1/4 तो हाफ हो गया ना, तो हाफ से 2 2 कैंसिल हो गया, क्या आ गया आंसर 1। सो फॉर दिस क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन का आंसर आ गया 1, फर्स्ट का आया π/2। अब बताइए थर्ड क्वेश्चन भी थोड़ा यहीं पे कर लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन में एग्जामिनर क्या पूछ रहा है? थर्ड क्वेश्चन में एग्जामिनर पूछ रहा है कि अगर f2 का वैल्यू a है, एग्जामिनर पूछ रहा है कि f2 का वैल्यू अगर a है और f0.5 का b है, तो दोनों को प्लस करके बताओ। तो f2 कितना होगा यहाँ से बताइए? f2 1 और 2 के बीच में, 1 और 3 के बीच में 2 कहीं होगा, और अगर ये स्लोप मेंटेन रखेगा तो यहाँ पे मिड पॉइंट में 1/8 आएगा। तो इट मींस 1/8 वैल्यू आया है आपका a का। एंड सेकंड एग्जामिनर बोल रहा है f0.5 जो है वो b है, तो f0.5 मतलब 0.5 तो यहाँ कहीं होगा, उसका वैल्यू 1/4 है, 1/4। और आप दोनों को ऐड करना है, तो वंस यू विल फाइंड a plus b, won't you think you will get 1/8 plus 1/4? Take the LCM 8, here is 1, 4 2 जा 8, so you will get 3/8. Yes, so third question का आंसर आएगा 3/8.
फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आएगा π/2, सेकंड क्वेश्चन का आंसर आएगा 1। आई थिंक किसी स्टूडेंट ने आंसर लिखा भी है, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट बेटा। ऐसे ही और क्वेश्चंस को हम करते रहेंगे। वी विल प्लान फॉर अदर सब्जेक्ट्स आल्सो द चैलेंजिंग सीरीज। सो इफ यू वांट देन जस्ट राइट योर फीलिंग इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आप हमारी क्लासेस देखे हो, क्लासेस अच्छी लग रही है, और अगर आपको लगता है कि बाय अटेंडिंग और क्लासेस यू विल गेट द बेनिफिट, डेफिनेटली अपने एक्सपीरियंस को शेयर करिए। एंड अगर आप गेट 26 और 27 का प्रिपरेशन कर रहे हैं और अगर कोई कमी नहीं छोड़ना चाहते प्रिपरेशन में, इंडिया के टॉप एजुकेटर से, एक्सपीरियंस एजुकेटर से पढ़ना चाहते हो, देन यू कैन ज्वाइन और एलीट बैच और अर्जुना बैच। और एवरी डिटेल इज अवेलेबल ऑन आवर वेबसाइट, सो यू कैन सिंपली विजिट आवर वेबसाइट। वेबसाइट का नाम है बच्चों स्टडीफाई, STUDIFY, studyfiplus.com। studyfiplus.com वेबसाइट पे जाइए, देयर यू विल गेट ऑल द कोर्सेज। और आप ये स्टडीफाई प्लस को गूगल प्ले स्टोर पे भी लिख सकते हो बच्चों, तो वहां से आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो। ओके, चलिए, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।